I'm joined by Congress MP Mr. Karti Chidambaram. Sir, tomorrow the sources suggest that there's going to be women's reservation bill that is going to be presented by this government. How do you see this? Are you in favor of this, and not you as an individual and as the party? See, in principle, I'm in favor of the women's reservation bill. I think it's long overdue. Women are tremendously underrepresented in our legislatures and in our parliament. And I think this will give a big fillip to their participation in politics at the highest level. I have been saying this consistently for many, many years. In fact, I've always been mooting to my own party that we should not even wait for the bill and actually field at least 33% women in every election we face. If the bill is tabled, I'm sure that our party will wholeheartedly support it. But the devil is in the details. We really do not know what the details of the bill are. But in principle, I'm in favor of it, and I think it will bring a positive churn to Indian politics. There are also some leaders who are questioning the timing, because it has been your party itself in 2010 brought this up, but then after so many years, why is it that the government is questioning the timing 2024 election? I think it's better late than never. So I really would not want to say that, oh, you're bringing it now, so don't bring it. I would not say that. I think the bill is long overdue and I welcome the bill, but I would like to caution that the devil is in the detail. We only know that the women's reservation bill has been cleared by cabinet. There's no official word on it. It's only what we've read in the news reports. But if that's true and the government intends to table it, in principle, I support it, and I'm sure in my party also in principle supports it. But I would like to again caution that the devil is in the details. Will not take much of your time. Last question. You are dressed going to the parliament, new parliament building to get yourself clicked. There is a lot of politics regarding the new building of the parliament as well. But how do you see that? See, I am nostalgic about the old building. I mean, I'm only a first-time MP. I even told people that when I went to Parliament, it felt like going to school because I was the only one who was escorted by a parent into Central Hall. And I have very fond memories of the old building. But the change has happened, and we will accept the change. And hopefully, it's not only the hardware, but also the software will work better in this new parliament, which by what I mean is that the government will allow divergent and diverse views to be heard, and they will have the patience and the courtesy to hear them. I think that's really the essence of democracy. Democracy is not about the bricks and mortar. It is about the essence. And I hope this government will respect the essence. And in parliamentary parlance, it's always known that while the government can have its way, the opposition must have its say. I hope the presiding officers of both houses will live by that credo and give space to diverse and divergent views and listen to them with courtesy and patience. हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में और लगातार चाह रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में ये हम लोगों के लिए भी बहुत स्वागत योग्य है। और लेकिन मैं चाहूंगी, मैं चूंकि एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी का भी पॉपुलेशन है, और चूंकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियां या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन, जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी, और जो दलित, दबे कुचले, प्रताड़ित लोग हैं वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि एसटी, एससी, ओबीसी को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खासतौर पर, ताकि वो कहीं पिछड़ ना जाए। मैं बस इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि ये चीज़ जो बहुत सालों पहले होनी चाहिए थी वो मोदी सरकार के 9.5 साल बाद हो रही है, और वो भी जब 2014 के मैनिफेस्टो में था। मैं इसको वेलकम करूँगी, पर साथ ही साथ बिल किस फॉर्म में आ रहा है, कब से लागू होगा, वो सब जब बिल सदन में पेश होगा तब पता चलेगा। अभी तो सब सोर्सेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है, पर उम्मीद करती हूँ ये सही तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा और महिलाओं को जो पावर टेबल पे जगह मिलनी चाहिए थी, जो इतने सारे सालों से हमारा संघर्ष रहा है, उसको पूर्ण करेगा। तो बस यही उम्मीद है कि ये बिल जल्द से जल्द पारित होगा। बिल महिलाओं के हित में होगा। ये बिल जो होगा महिलाओं को उनके अधिकार देगा, साथ ही साथ 2024 के चुनाव में लागू होगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, एक महिला होने के नाते हमने जो अपनी जर्नी की है, बगैर रिजर्वेशन के की है, लड़ाई लड़कर की है, इतनी जो दिक्कतें आती हैं महिलाओं को, विद स्पेशली सबसे ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत आती है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, जो स्लैंडर होता है, उस तरीके की जो मानसिकता है, मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादा महिलाएँ आने के बाद
ये ऐसी मानसिकता को ख़त्म करेगा। ये जो पुरुष प्रधान देश है वो ध्यान रखेगा कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो मेरा तो बस मानना ये है ये बिल जल्द से जल्द लागू हो, 2024 के चुनाव में लागू हो, 2024 में 33% महिलाएं चुनकर आएँ और देश में भागीदारी लें, देश की प्रगति में, उन्नति में और देश की दशा और दिशा दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भागीदारी लें। सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि कोई भी महिला अगर बनकर आती हैं, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री बने देश की, किसी और का रबर स्टैम्प बनकर ना रह जाएं, अपना खुद का विवेक लगाएं, अपने खुद के विवेक से देश को आगे बढ़ाएं। तो यही उम्मीद है कि जो महिलाएं आएंगी वो देश की दशा और दिशा एक ऐसी ओर की तरफ ले जाएंगी जहाँ पे सबको सम्मान मिले, जहाँ पे सबको ऐसा फीलिंग हो कि ये देश हम सभी का है, ध्रुवीकरण ख़त्म हो। बस यही उम्मीद है और यही आशा है। देखिए, जब मैंने ओथ ली थी मैंने यही साड़ी पहनी थी और आज जब आखिरी दिन इस पार्लियामेंट का है तो मैं इसी को पहनकर जा रही हूँ क्योंकि सारी मेमोरीज़ यहीं से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे पार्लियामेंट में 3.5 साल की मेरी जर्नी रही है। 3.5 साल में हमने डिस्ट्रप्शंस देखे, हमने प्रोटेस्ट देखे, हमने देखा किस तरीके से हमारी आवाज़ बंद करने का काम हुआ, हमने देखा कैसे हमारे माइक्स म्यूट हो जाते हैं, फिर भी हम डटे रहे, फिर भी हम लड़ाई लड़ते रहे। मैंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा कि इस 3.5 साल की जर्नी में 75 साल की जर्नी है जिसमें से 3.5 साल में मैं रही हूँ, उसमें मैंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने भी पूरा एक सेशन बिताया है, सेंट्रल हॉल में दोस्तियाँ बनाई हैं। यही स्पिरिट के साथ, प्रजातंत्र की स्पिरिट के साथ सेंट्रल हॉल में नामी गामी लोग अलग अलग पार्टियों से उन्होंने सल्यूशंस ढूंढे हैं। अगर कभी पार्लियामेंट्री रोड ब्लॉक होता था, ये मैं बात कर रही हूँ मेरे आने से पहले कि मैंने किस्से सुने हैं कि रोड ब्लॉक्स होते थे तो सेंट्रल हॉल में उसका रेजोल्यूशन होता था, फिर हॉल चेंबर्स में पास होते थे। तो ये सारी मेमोरीज़ हैं, अच्छी भी मेमोरीज़ हैं, खट्टी मीठी भी हैं, पर यही स्पिरिट जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, डिबेट, डिसेंट, डिस्कशन, डिसरप्शन, इन सबको हम साथ में एसेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली पॉजिटिव वाइब्स। गणेश चौथ है, मैं सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ एक शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त से शुभ शुरुआत हो और देश को आगे बढ़ाने की शुरुआत हो, तो ये मैं उम्मीद करूँगी केंद्र सरकार उस पर ध्यान देगी।